students. So today we are going to start the very next topic of class first year biology, which is known as electrophoresis. So if we look at the word electrophoresis, it is composed of two words, electro and phoresis. And the word electro comes from electricity, and the word phoresis simply means to move. So electrophoresis is basically a technique जो कि हमारे पास बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा मेजर ब्रांचेस में यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं. सिमिलरली इट इज़ आल्सो यूज इन द बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ आल्सो यूज इन द जेनेटिक्स एंड मैनी अदर ब्रांचेस. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, वो इस वजह से यूज़ किया जाता है बिकॉज इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स वी गेट सैम्पल्स. सो बहुत ज़्यादा सैम्पल्स हमें मिलते हैं. इफ़ दैट सैम्पल इज़ ऑफ अ DNA, अगर वो हमारे पास DNA या तो फिर RNA या तो फिर किसी प्रोटीन का सैम्पल है, और वो सैम्पल ऐसा है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर DNA का सैम्पल है तो उस DNA के सैम्पल में हमारे पास देयर आर वेरियस साइजेस ऑफ अ DNA. सो उन वेरियस साइजेस को सेपरेट आउट करना और उनको एनालाइज करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को करना पड़ता है. So if we look at the definition, so electrophoresis है क्या? It is the movement of a charged particles in a fluid or a gel under the influence of an electric field. So आपने क्या करना है, आप एक सैम्पल लोगे, चाहे वो DNA का हो, RNA का हो या तो फिर प्रोटीन का हो. आप उस सैम्पल को जेल के एक कॉर्नर पर प्लेस करोगे and that samples components are going to be moved on a gel under the influence of an electric field, जिसको अभी हम later on डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो देयर आर द वेरियस फैक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ द सरफेस चार्ज. सो these fragments might contain positive charge or a negative charge. For example अगर हम DNA की बात करें तो DNA is composed of nucleotide. एंड न्यूक्लियोटाइड के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इज़ नोन एज राइबोज शुगर. The second major component is known as phosphate group, and the third major component is known as a nitrogenous base. So these are the 3 major components of any nucleotide. So one of the component is a phosphate group, and we know that कि जो phosphate group होता है उसके ऊपर negative charge होता है. So DNA contains a negative charge. So similarly if we talk about the proteins are composed of amino acids, and there are some amino acids जिनके ऊपर positive charge है, there are some amino acids जिनके ऊपर negative charge है, and there are some amino acids which are neutral in nature, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. सो in a sample the components might contain positive charge or it might contain negative charge. So on the basis of a charges the sample's components are going to be separated. And the second one is the size is a very major reason or a basis for the separation. इसी की वजह से वेरियस साइज़ की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है. शेप, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द शेप, सो DNA जो है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, कभी कभार वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, विच कॉजेज़ द वेरिएशन इन इट्स साइज. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स में हमारे पास देयर आर द 4 different types of the shapes. For example, the very first shape or a structure we call it as a primary structure of a protein, and second one is secondary, third one is tertiary, and the last one is quaternary. And we know that with each stage जो हमारे पास complexity होती है structure की in a protein वो increase करती है. So हमारे पास there are the various structures of DNA, RNA or a protein. So third factor is shape. And coming towards the molecular weight, and molecular weight obviously is going to be depend on these 2 factors, size and shape. जितना ज़्यादा है हमारे पास second and third factor ज़्यादा होगा, molecular weight जो कि 4 factor है वो उतना ही ज़्यादा होगा. जितना ही हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड फैक्टर कम होगा, जो हमारे पास फोर्थ फैक्टर है वो उतना ही कम होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स विच इज़ सरफेस चार्ज, साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट, इन चारों की बेसिस पे हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी. इन सिंपल वर्ड जो DNA, RNA और प्रोटीन्स हैं जिनके हम लोग सेपरेटली एनालाइज करते होते हैं. सो इन सैम्पल्स के जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है ऑन दीज बेसिस.
if we talk about the process of the gel electrophoresis, what we have to do, we have to prepare a gel. So the very first step is the gel preparation. सबसे पहले हमें gel preparation करनी पड़ती है. हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होती है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. या तो वो हमारे पास एक्रोज जेल होती है या तो वो हमारे पास पेज होता है. ठीक है, अब पेज क्या है? पेज स्टैंड्स फॉर द पॉली एक्रिलामाइड जेल. सो दीज आर द टू जेल्स जिनको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज़ करते हैं. तो आपने क्या करनी है, जेल को प्रिपेयर कर देना है. आफ्टर द प्रिपरेशन दिस जेल इज़ गोइंग टू लुक लाइक समवट लाइक दिस. ठीक है, और ये जो जेल होती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. तो हम क्या करते हैं, पहले जेल को प्रिपेयर करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं. सॉलिडिफाई करने के बाद वी हैव टू प्लेस देम इन ग्लास बार्स और इन प्लास्टिक बार्स. आपने जेल ली और उस जेल को प्रिपेयर करने के बाद आपने उनको इस किस्म के जो ग्लास बार्स होते हैं या जो प्लास्टिक बार्स होते हैं उन प्लास्टिक बार्स के अंदर रख देना होता है ताकि जो आपकी जेल है वो ख़राब ना हो, बिकॉज इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड वेरी सॉफ्ट इन साइज़. सो आपने क्या किया, यू सिंपली टुक द जेल and place that gel around the inside these bars. तो आपने इन बार्स के अंदर क्या कर दिया, उस जेल को प्लेस कर दिया. आफ्टर प्लेसिंग दैट जेल, अब जो आपके पास एग्जैक्टली जो जेल होती है ना, आप उनको दो तरीके से प्लेस करते हो. या तो आप उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो या तो आप उनको वर्टिकल प्लेस करते हो. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देयर आर द टू सेटअप्स जिसके अंदर आपने जेल को प्लेस किया हुआ है. सो दिस वन इज़ द हॉरिजॉन्टल. आप या तो जेल को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते होते हो और आपने उसको प्लेस किस में एग्जैक्टली करना है, बफर में. यहाँ पर आप एक बफर प्रिपेयर करते हो. बफर इज़ एक्चुअली अ सॉल्यूशन. सो आप उस बफर को प्रिपेयर करते हो, उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हो. या तो आप उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हो या तो आप उसको इस तरीके से वर्टिकली प्लेस करते हो. अगर आप उसको वर्टिकली प्लेस कर रहे हो ना, सो स्टिल यू हैव टू प्लेस द बफर ऑन द अपर साइड एंड ऑन द लोअर साइड एज वेल. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको लोअर साइड पे नज़र आ रहा है that you have placed the running buffer, you have to place that running buffer at the top side as well. ठीक है, सो आपने क्या किया, सिंपली जेल को प्रिपेयर किया. जेल को प्रिपेयर करने के बाद यू पुट दैम इन प्लेट्स, और प्लेट्स में प्रिपेयर करने के बाद आपने उनको क्या कर देना है, बफर के अंदर उस पूरी की पूरी जेल को विद द प्लेट्स प्लेस कर देना है. सो यू सिंपली प्लेस द जेल इनसाइड द बफर. जब आप उसको इनसाइड द बफर प्लेस कर देते हो तो आपको ये जो कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्मॉल वेल्व्स, और हम इनको कहते हैं सैम्पल वेल्स. ये जो सैम्पल वेल्स हैं एग्जैक्टली आप सैम्पल इन वेल्स के अंदर प्रिपेयर करते हो. जब आप इस सैम्पल को वेल्स के अंदर डाल देते हो, उसके बाद यू आर सपोज टू कनेक्ट दैट होल सिस्टम विद अ बैटरी. अब ऑब्वियसली बैटरी के टू एंड्स हैं, कैथोड एंड द एनोड. So cathode is negatively charged and anode is positively charged. So for example, अगर आपके पास यहाँ पर जो आपने सैम्पल प्लेस किया है इट इज़ ऑफ अ प्रोटीन सैम्पल. अभी इस प्रोटीन के अंदर देयर आर द वेरियस साइजेस ऑफ द प्रोटीन्स, उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइजेस होंगी एंड देयर आर द वेरियस चार्जेस ऑन दैट प्रोटीन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेट चार्जेस, जो एक प्रोटीन के ऊपर जो नेट चार्ज होगा और उसका जो साइज़ होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो इस जेल के ऊपर मूव करेगा. जितने ही ज़्यादा हमारे पास साइज़ लार्जर होता है, जितना ही प्रोटीन का साइज़ हमारे पास लार्ज होगा, जो स्पीड है, जो मूवमेंट होती है, वो इतनी ही ज़्यादा स्लो होगी ऑन जेल. और जितना ही साइज़ हमारे पास स्मॉल होगा, उतनी ही ज़्यादा जो स्पीड है वो आपके पास फास्ट होगी उस प्रोटीन की ऑन और ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑन जेल. इफ़ यू टॉक अबाउट द चार्जेस, सो ये जो एंड है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. अगर तो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड. अगर तो प्रोटीन आपके पास होगी पॉजिटिवली चार्ज देन इट विल मूव टूवर्ड्स दिस बफर, वो इस बफर में जो है चली जाएगी. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ चार्जेस वो अपने आप को क्या करेंगे, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो हैं वो अलाइन होंगे. जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे एक फ्रैगमेंट जो कि वेल्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक प्रेजेंट है, दैट मीन्स
कि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव ही है। हाउ डू यू इवन नो? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नज़दीक प्रेजेंट है, और जितने ज़्यादा आपके पास वेल के नज़दीक होंगे ना, दैट मीन्स कि उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा है। अगर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेगमेंट और एक यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेगमेंट, दैट मीन्स इसका साइज़ लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और अगर यहाँ पर एक फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसका साइज़ लार्जर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बट this fragment size is smaller as compared to this one. So that's how these are separated in the gel electrophoresis. So जो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आते होते हैं। आपने इनको यूवी लाइट के अंदर विजुलाइज करना होता है, बिकॉज के बगैर यूवी लाइट के आप कभी भी इन बैंड्स को देख नहीं सकते हो, चाहे वो आपके पास डीएनए के बैंड्स हों, चाहे वो आपके पास आरएनए के बैंड्स हो, चाहे वो आपके पास प्रोटीन्स के बैंड हो, आपका सैंपल कोई भी हो। जब भी आपने बैंड्स को विजुलाइज करना होता है, तो विजुलाइज करने के लिए आपने उसको यूवी में प्लेस करना होता है। और जब आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो सैंपल प्रिपरेशन के दौरान आप उसके अंदर ETBR डाल देते होते हो, इथाइल ब्रोमाइड, जो कि यूवी के अंडर यूँ समझ लो कि एक फ्लोरेसेंस देता है, एक हल्की सी लाइट देता होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका बैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा आपका बैंड थिक होगा ना, दैट मीन्स कि आपके पास फ्रेगमेंट्स उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, और जितना आपके पास बैंड थिन होगा, दैट मीन्स कि आपके पास फ्रेगमेंट्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा लेस हैं। थिक मीन्स हाई फ्रेगमेंट्स एंड थिन मीन्स लो फ्रेगमेंट्स। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव रिटन 1000 BP। BP का मतलब है बेस पेयर्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली बेस पेयर्स की बात हो रही है, तो दैट इज़ गोना बी द बैंड ऑफ अ DNA और अ RNA। ये DNA या RNA का सैम्पल था जिसको आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया है, एंड दिस 1000 बेस पेयर मीन्स कि ये जो साइज़ है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू 500 बेस पेयर। दैट मीन्स कि ये वेल्स के ज़्यादा नज़दीक प्रेजेंट है और ये वेल के बहुत दूर प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एज़ कम्पेयर टू वेल, वैसे वैसे ही जो बेस पेयर्स के जो नंबर हैं वो डिक्रीज़ करेंगे और जो साइज़ है वो स्मॉलर होता जाएगा। सो दैट्स हाउ दे आर विजुलाइज्ड इन अ UV लाइट।